हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਬੱਚੇ +1 ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਆਈਟਮਸ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਪਰਚੇਜ਼ਸ, ਸੇਲਸ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਲਿਖਨੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਸ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। 2 ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬੱਚੇ 1/4, ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ 1/4 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਟਾਕ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2019, 31 ਮਾਰਚ 2018, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆਏਗਾ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो जी, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000। 2 परचेज, परचेजेस लिखनियां ने इनर कॉलम में। परचेजेस इनर कॉलम में ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਪਰਚੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਟ ਪਰਚੇजेस ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਚੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਊਟਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਈਟਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। परचेजेस 2 लाख, 2 लाख की परचेजेस ने। परचेजेस रिटर्न देखो, परचेजेस रिटर्न है कैरियर, सैलरीज, डिस्काउंट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस, सेल्स, सैलरी लेटर, क्रेडिटर, जीएसटी, कोई भी परचेजेस रिटर्न नहीं देती तो डायरेक्ट इन किधर साइड पे लिखांगे? आउटर कॉलम में। कितना? 2 लाख, 2 लाख। ओके, दूसरे पासे आ गया बच्चे बाय सेल्स। सेल्स का भी सेम पैटर्न, ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੇਲਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਸੇਲਸ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ? 5 ਲੱਖ। ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਬਟ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਊਟਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ। 5 ਲੱਖ। ओके, बाय की आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक थले दिता है, तेनू अगे क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ। ਲਓ ਜੀ, 50,000, 50,000 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਗਏ? ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ट्रेडिंग अकाउंट च की आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हां दा संबंध डायरेक्ट साडी फैक्टरी नाल है, जो असी मैन्युफैक्चरिंग
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਹਰੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਲਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। कैपिटल, सब में पहले एक एक आइटम चको। कैपिटल, कैपिटल क्या दी आइटम है? बैलेंस शीट, लिख दो, बैलेंस शीट जाएगी जी। ओके जी। उस तो बाद आगे बच्चे स्टॉक हो चुके हैं। कैश एट बैंक का दी आइटम है? बैलेंस शीट। कैश इन हैंड का दी आइटम है? बैलेंस शीट। ओके, मशीनरी का दी आइटम है? बैलेंस शीट, क्योंकि साडे एसेट्स ने, एक ही ने साडे एसेट्स ने। और एसेट्स जे मैं तुहानू पिछले लेक्चर ध्यान नाल सुनिया जी, एसेट्स सारे बैलेंस शीट जांदे ने, लायबिलिटीज सारियां बैलेंस शीट्स जांदियां ने। ओके, फर्नीचर की है साडी? बैलेंस शीट दी आइटम। ओके, परचेज हो गया। वेजेस, हाँ वेजेस, वेजेस डायरेक्ट ने, वेजेस डायरेक्ट ने क्योंकि वेजेस ना दित्तियां जाण तां साडी फैक्ट्री बंद होंदी है, साडी फैक्ट्री प्रभावित होंदी है। एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं तुहानू बड़ी चंगी तरह एक्सप्लेन किया है। टू की आ गया वेजेस। वेजेस, वेजेस कितनियां ने बच्चे? 50,000। वेजेस कितनियां ने? 50,000। वेजेस तो बाद नेक्स्ट आ गया बच्चे कैरियर्स। कैरियर्स इनवर्ट, कैरियर्स इनवर्ट कितना है? वेजेस हो गया। कैरियर्स इनवर्ट, कैरियर्स इनवर्ट कितना? 33,000। कैरियर्स इनवर्ट की हुंदा है? ऐसा कैरियर्स जो वस्तुओं लैके आउंदे, फैक्ट्री तक लैके, इनवर्ट का मतलब आउण वाली वस्तुओं ते किराया। हाँ, आउण वाली वस्तुओं ते किराया मतलब फैक्ट्री तक पहुंचण तक दी वस्तुओं ते किराया। इहदा मतलब डायरैक्ट है। जे उन्हां ते किराया नहीं देवांगे, वस्तुआं फैक्ट्री विच नहीं पहुंचणगीਆਂ, साडी फैक्ट्री नूं प्रभाव पवेगा, साडी फैक्ट्री है जिहड़ी उस दा बंद हो जाए। ओके, इसलिए ये की है? डायरैक्ट एक्सपेंसेस। और कैरीज आउटवर्ड की हुंदा है? इनडायरैक्ट एक्सपेंसेस। कैरीज आउटवर्ड किहड़ा हुंदा है? इनडायरैक्ट एक्सपेंसेस। ओके, वो जांदा किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनवर्ड है तो इधर आएगा कितना? 2 कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड कितना है? 33,000। 33,000 रुपए कैरीज जेड़ा इनवर्ड है। अगे आ गए बच्चे सैलरीज। हाँ, सैलरी केड़ा साडा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तुहानू पहला दस्सिया सैलरी, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, सेल्स आ गई। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर किधर जाएगा? बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर किधर जाएगा? बैलेंस शीट। हुण नेक्स्ट आ जाए बच्चे, देखो इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। हुण जीएसटी की है? हुण मैं तुहानू जीएसटी का एक लैक्चर बड़े दिते हुए है, उहदे विच तुहानू गल क्लीयर की है। जीएसटी साडा खर्चा नहीं है, जीएसटी साडी आमदन नहीं है। जीएसटी सिर्फ साडी या तां साडा एसेट और या साडी लायबिलिटी। देखो ना, जे असीं जीएसटी इकट्ठा कर लिया, ज्यादा इकट्ठा आ गया, इकट्ठा हो गया, तो वह की साडी लायबिलिटी है, असी सरकार नूं देनी। ठीक है ना? जे असी देता होया ज्यादा देता होया, वो साडा एसेट है, क्योंकि अल्टीमेटली साडे कोल आएगा। बट है कि ये साडा खर्चा नहीं है और साडी आमदन नहीं है। ये सारे जांदे किधर ने? या तो एसेट होएगा साडा या लायबिलिटी आएगी। इसलिए जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, वो सरकार दे वास्ते इकट्ठा करना है, तो सरकार नूं ही देना। ठीक है ना? इसलिए साडा की बन जाता है, एक की है एसेट्स या लायबिलिटी सारियां किधर जांदियां ने? बैलेंस शीट। एसेट्स या लायबिलिटी सारियां किधर जांदियां ने? बैलेंस शीट। इसलिए जीएसटी जेड़ा वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट। ये सारियां आइटम है जिहड़ियां ने वो बैलेंस शीट जाणगियां। बट सेट ऑफ करांगे पहला। सेट ऑफ दा मतलब मैं तुहानू पहला सिखाया होया भी जेड़ा सेट ऑफ है, जिन्ना जीएसटी असी प्राप्त किया, जिन्ना जीएसटी असी दिता है ना, प्राप्त कीते ते दिते नू कड्ढी जावांगे आपस विच। मतलब जिन्ना प्राप्त किया उहदे विचों किन्ना देता, बाकी किन्ना बचे, बाकी कितना बचा वो वेखना है। असी बाकी साडी लायबिलिटी है कि असी बाकी ज्यादा दे बैठे हैं, साडा एसेट है। क्लियर है? या तो साडा एसेट होएगा या साडी लायबिलिटी होएगी। वो तुहानू बाद विच सेट ऑफ करके दिखाउने। तो लो जी, इहदे विच मेरे हिसाब नाल बस आही आइटम्स ही आउणगियां ते ओपनिंग स्टॉक भी, परचेजेस, वेजेस ते कैरीज इनवर्ड। हुण ध्यान दिओ, इहदा जोड़ करन जा रहे आपां 5 लाख ते 50,000 रुपए। 5 लाख ते 50,000। इधर भी बच्चे कितना आ गया? सेम जोड़ इधर आ गया, तो बाकी क्या रह गया? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। 2 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। सीडी लिख दिया था, सीडी मतलब कैरी डाउन।
ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ BD मतलब ਬਰਾਡ ਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚਾਰੇ ਆਈਟਮ 5,50,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਈਟਮ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2,37,000 2,37,000 रुपए। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਈ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਰਾਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2,37,000। 2,37,000। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਹ बैलेंस शीट आप लिख चुके हैं। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ सैलरीज कितनी ने बच्चे 70,000 रुपए। कितनी ने 70,000 रुपए। ओके नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट दिता है किधर जाएगा इनडायरेक्ट है डिस्काउंट अलाउड कितना है 4,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड एक ध्यान रखा करो क्रेडिट वाली आइटम क्रेडिट वाले पासे डेबिट वाली आइटम डेबिट वाले पासे अमूमन ही होता है। अच्छा कोई स्पेशल केस होवे तो बखरी गल। अच्छा हुण आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड दा मतलब सानू जिहड़ा डिस्काउंट प्राप्त होया इहदा मतलब साडी आमदन है। आमदन वाले पासे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी है बच्चे ध्यान दियो 5,000। कितना है 5,000। नेक्स्ट है बच्चे नेक्स्ट आ गया एडवर्टाइजमेंट भी इनडायरेक्ट है टू एडवर्टाइजमेंट कितना है एडवर्टाइजमेंट 50,000। नेक्स्ट है बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस तो है ही ऑफिस से तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही होंगे। कितना है 40,000 रुपए। नेक्स्ट है बच्चे एडवर्टाइजमेंट भी हो गया ये भी हो गया डिस्काउंट भी हो गया डिस्काउंट अलाउड भी हो गया। नेक्स्ट है सेल्स हो चुके हैं सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट ए भी बैलेंस शीट। लो जी ऑलमोस्ट साडा कंप्लीट है। इहदे विच चार आइटम आईयां 70,000 दी आ गई 4,000 50,000 ते 40,000। एक पासे 2,37,000 ते 5 2,37,000 ते 5,000 कितना हो गया 2,42,000। सेम जोड़ इधर आ गया 2,42,000। ये सारी आइटम घटावांगे तो बाकी की आ गया टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चे इन सारी आइटम घटाने तो बाद 78,000 रुपये बचता है। 2,42,000 चो आ चारे आइटम घटा दियो तो कितना आ जाएगा 78,000 रुपया साडा की आ गया नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जिहड़ा कैपिटल दे विच ऐड होएगा अगे बैलेंस शीट दे विच जाके कैपिटल दे विच ऐड होएगा। ठीक है लो जी नेक्स्ट करन जा रहे हैं बैलेंस शीट विच सब तो पहला की आंदा है कैपिटल बारे बच्चे मैं तो अगे एक बार चंगी तरह एक्सप्लेन किया है भी कैपिटल की है। कैपिटल बच्चों को आम तौर पर मैं स्टूडेंट्स को पूछना भी कैपिटल है जिहड़ा वो साडी एसेट है साडा कि साडी लाइबिलिटी। असी उहदे विच ला रहे 10 लाख रुपया बिजनेस दे विच लाता वो साडा एसेट है कि साडी लाइबिलिटी। स्टूडेंट्स आम तौर पर कहते हैं सर फिर वो साडा एसेट हो गया ना साडे कोल 10 लाख रुपया आ गया। बट ध्यान दियो मैं तुहानूं हमेशा ही ये गल कहना भी बिजनेस नूं अलग गिनो। बिजनेस एक अलग यूनिट है और जो मालक है वो अलग यूनिट है। बिजनेस अलग यूनिट है मालक अलग यूनिट है। मालक ने बिजनेस दे विच 10 लाख रुपया लाया तो बिजनेस ने मालक नूं 10 लाख रुपया वापस करना है क्योंकि बिजनेस ने मालक कोलों लिया है। तो एक तुसी हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल सोचो। बिजनेस नूं मालक ने दिता तो बिजनेस वाले पासे खड़े होकर देखो अल्टीमेटली तो बिजनेस नूं मालक नूं वापस करना पैना ना। तो बिजनेस वास्ते जिहड़ी कैपिटल है वो लाइबिलिटी बन गई। बिजनेस वास्ते कैपिटल लाइबिलिटी किंदे प्रति बन गई मालक प्रति। बिजनेस है जिहड़ा वो मालक नूं कैपिटल वापस करेगा
कोशिश करेगा थोड़ी वधा के देवां मैं इनू, है ना, 10 लाख का 11 लाख करके देवां प्रॉफिट। इसलिए जिहड़ा कैपिटल है, जिहड़ी हुण कैपिटल है मान लो 2 लाख रुपया, है ना, मान लो इस साल 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, तो बिजनेस ने मालक ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ? 3 ਲੱਖ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ? 3 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਆਦੀ ਪਰਸਨਲ खर्च वास्ते कट के लै गया, जिहड़ियां कि ड्राइंग्स होंदियां ने, मान लो 50,000 रुपया कट के लै गया, तो हुण की होएगा? बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी रहेगी? बिजनेस की लाइबिलिटी रहेगी सिर्फ तो सिर्फ 2.5 लाख रुपया वापस करनी है उन्होंने। किनू माल वापस करेगा? मालक नूं। इसलिए कैपिटल दे विच प्रॉफिट हमेशा ऐड हुंदा है ते ड्राइंग्स हमेशा ही लैस होंदियां। ठीक है ना। कैपिटल कितनी है ध्यान दिओ, कैपिटल है अपने कोल 1,50,000 रुपए, इन्हां कॉलम विच लिखो 1,50,000 रुपए। ऐड की करेंगे? नैट प्रॉफिट। हुण नैट प्रॉफिट ऐड करेंगे, नैट प्रॉफिट साडे कोल है कितना? 78,000 रुपए। जो 78,000 रुपए ऐड करांगे, बट इहदे विचों ड्राइंग्स लैस करनियां ने, पर साडे कोल इस क्वेश्चन दे विच ड्राइंग्स दित्तियां नहीं होईयां, इसलिए कैपिटल दे विच ऐड नैट प्रॉफिट करांगे तां कितना आ गया? 2,28,000 रुपए। 2 लाख ते लो जी 2,28,000 रुपए आ चुके हैं। नो नैक्सट 1 बाय 1 असी एक एक आइटम चक्कन जा रहे हैं। कैपिटल होगी आ बैलेंस शीट दी आइटम है साडे कोल, कैश एट बैंक। कैश नीचे आएगा, कैश इन हैंड ते कैश एट बैंक, दोनों आइटम कर दो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 5,000 ते 10,000। 5,000 से 10,000 रुपये हो गई। नेक्स्ट है मशीनरी फर्नीचर। मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, ऊपर आएगा मशीनरी फर्नीचर। मशीनरी भी होगी, फर्नीचर भी हो गया। कितना मशीनरी है साढ़े को? 1 2 3 4 5, 1 लाख। फर्नीचर है 13,000। मशीनरी है 1 लाख, फर्नीचर है 13,000। लो जी, परचेजेस हो चुकी है, वेजेस हो चुकी है, कैरीज इनवर्ड गए, सैलरीज हो गई, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स, सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट की आ गया? सन्ड्री डेटर। की है साडा? करंट एसेट। सन्ड्री डेटर केड़ा होंदा है? करंट एसेट। कितना है? 90,000। करंट एसेट इनके नाल लिख लो। सन्ड्री डेटर्स कितना ने बच्चे? 90,000। कितना है? 90,000। नेक्स्ट है बच्चे सन्ड्री क्रेडिटर। की है साडी? लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? ध्यान दियो, बैलेंस शीट दी आइटम है। ए सी बच्चे 47,000 रुपये। कितना है? 47,000। लो जी, सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 47,000 रुपये। नेक्स्ट आ गया बच्चे जीएसटी। लो जी, सारी आइटम्स हुण तक हो चुकी हैं, पर एक आइटम रह गई है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी लेके जाना है, इसलिए लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चे? 50,000। लो जी, हुण तकरीबन सारी आइटम्स हो चुकी हैं, रह गई सिर्फ जीएसटी। हुण जीएसटी है जिहड़ा, हुण आपां इह देखना है भी जीएसटी नूं सैट ऑफ करके जिहड़ा देना सी दे के, जिहड़ा लैना सी लै के, जिहड़ा बैलेंस है वो साडा एसेट है कि साडा लाइबिलिटी है। जे तां साडे कोल बचिया पिया है, साडे कोल बचिया पिया मतलब आउटपुट ज़्यादा है। आउटपुट जीएसटी किहड़ा हुंदा है? जिहड़ा असीं लिया। इनपुट जीएसटी किहड़ा हुंदा है? जिहड़ा असीं दित्ता है। इस चीज़ नूं ध्यान दिओ, आउटपुट जिहड़ा असीं लिया, इनपुट जिहड़ा असीं दित्ता है। जे तां साडे कोल आउटपुट वध गया तां साडी की बन जाएगी? लाइबिलिटी, क्योंकि असीं देना सरकार नूं। ठीक है ना, अल्टीमेटली तो सरकार नूं देना है। जे इनपुट ज़्यादा है, दे ज़्यादा बैठे हैं, तो साडा की बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। क्लीयर है ना। हुण आपां इह देखना है भी इनपुट साडा ज़्यादा है कि आउटपुट साडा ज़्यादा है। सैट ऑफ करन तो बाद
ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ GST ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ GST ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਬਚਿਆ। मतलब इनपुट ज्यादा है कि आउटपुट ज्यादा है। जे तो आउटपुट ज्यादा होया तो लाइबिलिटी है, जे इनपुट ज्यादा होया तो साडा एसेट है। दोबारा सुनो, आउटपुट ज्यादा होया तो साडी लाइबिलिटी है, इनपुट ज्यादा होया तो साडा एसेट है। देखो ध्यान दियो बच्चे, इनू सेट ऑफ करन जा रहे हैं। इत्थे आपां लिख दियो इनपुट और आउटपुट। आगे आ गया IGST, CGST, SGST। IGST, CGST, IGST, CGST, SGST। लो जी तीन आइटम हो गई IGST, CGST ते SGST। सब नाल पहला आपां लवांगे की, आपां लवांगे जो सानू मिलिया, मिलिया की हुंदा है आउटपुट। आ तीन आइटम सानू मिल गई 8 8 ते 12, 8000 8000 ते 12000। पर पहला लेना केड़ा IGST। देखो IGST तो आप लिखन जा रहे हैं आउटपुट जो मिलिया GST विच है कि IGST कितना मिलिया 12, बाकी दोवें 8 8, 12000 मिलिया, 8000 मिलिया, 8000 मिलिया दिता। उस तो बाद की आ गया, हुण इस चीज को सैट ऑफ जो करना है, देखो इनपुट जिन्ना मिलिया ते जिन्ना दिता, जिन्ना मिलिया ते जिन्ना दिता। हुण दिता किन्ना है, दिता किन्ना सी, IGST किन्ना दिता, IGST बच्चे दिता असी 15000। तां IGST जो 15000 दिता तां लैस की करांगे, लैस इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना है बच्चे 15000 रुपया। असी IGST तो कुछ नहीं है, इनपुट 15000 देता, बाकी 3000 रुपया IGST अजे भी देना है। मैं तुहानू GST वाले चैप्टर विच बड़ा क्लियर किया है, IGST है जिहड़ा भी बाकी बच जाता है वो CGST नाल सैट ऑफ हुंदा है। जे CGST तो भी ज्यादा है तो फिर SGST नाल सैट ऑफ हुंदा है। इसलिए 3000 रुपया जिहड़ा है ये बच गया, 3000 रुपया जिहड़ा बचिया, इधर 8000 रुपया, इधर भी 8000 रुपया। हुण ये 3000 नूं सैट ऑफ करांगे पहला CGST नाल। CGST अपने कोल 8000 रुपया साडे कोल आया होया है, कितना आया है 8000, पर असी दिता कितना, पहला IGST जिन्ना देना सी दियो 3000 रुपया IGST दे दियो। आ की हो गया नील, आ की हो गया, लो जी इत्थे कांटा मार दियो, मतलब ये नील हो चुके। ओके ये की हो गया नील। हुण जिहड़ा बाकी बचिया, बाकी की बच गया साडे कोल, जो भी बैलेंस बचिया वो बैलेंस ये है, इहदा CGST कितना बच गया 5000 रुपया जिहड़ा साडे कोल है मिलिया है, ते SGST कितना है वो 8000 रुपया जिहड़ा साडे कोल है। हुण 5000 रुपया तो साडे कोल CGST पे है ते SGST कितना पे है 8000 रुपया दिता कितना। हुण इनपुट मतलब दिता कितना, CGST कितना दिता असी 10000 ते SGST कितना दिता वो भी 10000, CGST भी 10000 दिता, SGST भी असी कितना दिता 10000 रुपया दिता। ठीक है, लेस इनपुट GST हुण दिता कितना, ध्यान दो 10000 रुपया। हुण CGST नु CGST नाल करो, SGST नु SGST नाल करो, ते 10000 रुपया ही आ दिता। हुण देखो ना हैगा कितना सी, मिलिया कितना सी 5000, दे कितना दिता 10000, मिलिया कितना सी SGST 8000, दे कितना दिता 10000। हुण ज्यादा दिता, इहदा मतलब ज्यादा दिता, इहदा मतलब इनपुट ज्यादा है। देखो ना आउटपुट कितनी है 5000, इनपुट कितनी है 10000, आउटपुट SGST की कितनी है 8000, इनपुट कितनी है 10000। ठीक है ना, इहदा मतलब लास्ट पे आके की बच गया, बैलेंस की बच गया, बैलेंस है साडे कोल कितना रह गया इनपुट दा, बैलेंस की रह गया इनपुट ही रह गया ना 5000 रुपया CGST दा ते 2000 रुपया SGST दा। हुण जेड़ा इनपुट दा मतलब है
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਸਟ। ਐਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 5000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ CGST ਔਰ 2000 ਰੁਪਏ SGST। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਇਨਪੁੱਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਣਾ ਥੱਲੇ ਸੀ ਇਨਪੁੱਟ CGST ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ SGST ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਹੈ, ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸਟ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਐਸਟ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਐਸਟ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਆਇਆ ਬੱਚੇ 2,75,000 ਰੁਪਏ, 2 ਲੱਖ ਤੇ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2,75,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 2,28,000 ਤੇ 47, 2 ਲੱਖ ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2,75,000 ਹੀ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, 2,75,000 ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ 2 ਲੈਕਚਰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੈਕਚਰ ਵਿਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਓਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।